بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Hi guys, how are you all doing? So today I'm going to bring you a review of my new phone, and it's going to be a little bit in Urdu and the rest is going to be in English. उसकी मेन वजह ये है कि आई कैनॉट डू टू अनबॉक्सिंग एक ही दफ़ा कर सकता हूँ. मेरी कोशिश ये होती है, आई प्रिफर डूइंग टू वीडियोज़ एट अ टाइम, वन इन इंग्लिश एंड वन इन उर्दू. So let's start off with the review of my new phone, the Infinix Hot 8. So here's the box, and I've just purchased it recently, and here you go. Oh, what has happened over here? कहाँ गया phone भाई? The phone's not in the box. The phone's not in the box. That's quite unfortunate. So, what should we do now? We don't have a phone in the box. Oh. So, what we'll do is we'll move this onto a side and we'll start off all over again. Here we go. It's the Note 7. It's the Note 7 and that was just a joke. वो जो शुरू में मैंने किया वो सिर्फ एक मजाक था आप लोगों के साथ. Unfortunately मेरा Hot 8 ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी ने मुझसे चोरी किया at gunpoint. It was snatched. This is my second phone stolen this year. सबसे पहला मेरा Samsung का J6 Plus जो मैंने तकरीबन 32,000 का ख़रीदा था इसी साल में. नहीं तो तकरीबन पिछले 10 साल में मुझसे कभी भी कोई फ़ोन नहीं गुमा या छीना गया. सो दैट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट. सो आई हैव द फ़ोन इन वन हैंड एंड द बॉक्स इन द अदर. सो लेट्स ट्राई टू डू एन अनबॉक्सिंग. सो होप इट वर्क्स आउट वेल. तो आई वाज प्रीटी हैप्पी विद द इन्फिनिक्स ओवरऑल. तो J6 Plus से भी ज़्यादा खुश था and that's the main reason why I'm getting it again. And this phone's cost me 27,000 rupees. With the specs, I think it's the best around. A20s was my closest competitor, Samsung का A20s, लेकिन वो नहीं लिया. तो आप देख सकते हैं 27,000 की कच्ची रसीद बनी है मोबाइल मार्केट सदर से. और I'll just move that aside, and so that was neatly cut open. So here you go. It's in Bolivia blue color. That's a beautiful color. So that's what we get in the box. So the biggest obstacle of making videos in the daytime is that interruptions. नेस्ले वाला आ गया, पानी की बोतलें लेकर आ गया. तो I thought of attending him. वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा attending him. And I'm back. So let's get back to the phone once more.
It's a Note 7, 6.95, almost 7 inches, G70, high performance, high gaming performance GPU, I guess, or the processor unit. So here's the phone. Wow, it's beautiful, simply amazing. Quite a big phone. Immediately camera महसूस होता है at the back of the surface. एक दफ़ा फिर से नेस्ले वाले भाई साहब ने, जिसने ज़िंदगी में ये दरवाज़ा नहीं खटकाया, उसने दोबारा आके यही वाला दरवाज़ा खटकाया। तो मैंने उसको बोला मेहरबानी मेरी वीडियो में कंट्रीब्यूट करने के लिए, दिल कर रहा था उसकी भी तस्वीर डाल दूँ ना। तो फिर दोबारा से फ़ोन पे आ जाते हैं भाई। तो काफ़ी बड़ा फ़ोन है, काफ़ी बड़ा फ़ोन है एंड इट्स गॉट द water drop camera in front, 6.95 inches, almost 7 inches, 128 GB RAM. तो 128 मुझे रिक्वायर्ड था। मैं जा सकता था सैमसंग के लिए, लेकिन मेरा यूजेज थोड़ा हैवी है, नॉट ऑन द गेमिंग साइड बट ओवरऑल वर्क यूजेज मेरा थोड़ा हैवी है। आई प्रेफर्ड गोइंग फॉर अ फ़ोन. 6 GB is going to be amazing. I'm usually used to 2 GBs. So Infinix 4 GB was amazing. तो ये तो 6 है. This is going to be a monster for me. मेरे मुताबिक इस वक्त 30,000 में इससे अच्छा फ़ोन नहीं मौजूद. So Infinity display 6.95 inches, G70 high performance GPU gaming processor, 48 मेगापिक्सल कैमरा. और याद रहे दिस इज़ंट एग्जैक्टली 48 मेगापिक्सल्स, इट्स अ 12 मेगापिक्सल कैमरा, लेकिन उसके प्रोसेसर में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो वो उसको 48 मेगापिक्सल कर देता है. एंड दिस इज़ गोना बी एन अमेजिंग फीचर फॉर मी for my YouTube channel, the 1080p low light video camera processor of the camera. So that's one amazing feature. And then we've got the Infinix code and IMEI numbers at the back. So made in China. Let's do the unwrapping of it. So is that necessary? I don't think so. I'll just keep that on for the moment. That's how I do it. स्क्रीन उतार देता हूँ, स्क्रीन उतारना लाजमी होगा, उसके बगैर मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर सकूँगा. सो आई कीप माई बॉक्सेस वेरी केयरफुली. ये मेरी स्पेशलिटी है. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन द बॉक्स. बॉक्स इसका काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन जितना मेरा ख़्याल है कि इसमें मुझे हैंड फ्री नहीं मिलने वाली. इन्फिनिक्स की हैंड फ्री से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था जो मेरे को हॉट 8 में मिली. हैंड फ्री तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे पास है. बॉक्स सिर्फ बॉक्स नहीं है. तो जैसा मैंने आपको कहा, चार्जर दैट्स एन 18 वोल्ट फास्ट चार्जर. तो समथिंग न्यू. आई एम नॉट यूज्ड टू हैविंग अ फास्ट चार्जर. मेरा ख्याल है मैंने कभी किसी फ़ोन में सही फास्ट चार्जर देखा भी नहीं है. एक दफ़ा कोई हुआवी लिया था बीच में, उसमें तो मोस्ट लाइकली इसकी केबल्स भी फास्ट चार्जिंग है. एंड what do we have over here? We've got the jelly case and the screen protector. So here's the screen protector and here's the jelly case. काफ़ी प्लेन है. हॉट 8 का बड़ा ब्यूटीफुल सा जेली केस था, लेकिन ये रगड सरफेस है. लेकिन हॉट 8 का बहुत प्यारा जो है वो जेली प्रोटेक्टर था. और चलें इन सब चीज़ों को साइड पे करते हैं. और फ़ोन जैसा आप देख सकते हैं ये बोलिविया ब्लू कहलाता है, लेकिन मेरे ख़्याल से ये ऑलमोस्ट सिल्वरी टेक्सचर है. इसका बड़ा जो है वो रिफ्लेक्टिंग टेक्सचर है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्विच ऑन द फ़ोन. एंड द ऑन बटन इज़ द फिंगरप्रिंट सेंसर. लोकेशन मुझे किसी और ने भी बोला था बहुत अच्छी जगह पे है, तो आई इवन थिंक काफ़ी अच्छी जगह पे इसका लोकेशन है थंबप्रिंट सेंसर का. तो क्वाइट अ क्विक फ़ोन. ऑलमोस्ट ऑन हो चुका है. एंड नाउ आई विल डू द सेटिंग फॉर इट एंड गेट बैक टू यू.
भाई ये तो काफ़ी कंफ्यूजन वाला सीन था। कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतनी ज़्यादा जो है वो इंटरप्शन आई। तो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मैंने आपको केसिंग का बताया था, जेली केसिंग का। ये जो है नोट 7 के साथ आया और ये हॉट 8 का था मेरे प्रीवियस फ़ोन का। तो इस बार हैंड फ्री साथ नहीं है, लेकिन ये इन्फिनिक्स की बड़ी प्यारी हैंड फ्री है यार, क्योंकि मेरी यूजेज ऐसी है कि हैंड फ्रीज मेरे पास ज़्यादा देर रुकती नहीं है। हल स्कल कैंडी तक जैसी हैंड फ्रीज जो है 2-3 महीने 6 महीने में ख़राब हो जाती हैं। इसने अपने 3 महीने पास कर दिए हैं, मैं इस हैंड फ्री को पास करता हूँ। मेरे हिसाब से ये 1000 रुपये में भी बगैर बॉक्स के लेना बुरा नहीं है। इट्स क्वाइट अ गुड हैंड फ्री, साउंड्स decent, not the best around, but quite good. So this was the hand free and the box, and let's get back down to the phone. So I just removed the SIM tray. तो आप देख सकते हैं यार, सिम ट्रे इसकी काफ़ी बड़ी है। आई हैव नेवर सीन सच अ बिग सिम ट्रे। बहुत ही बड़ी सिम ट्रे है ना इसके साथ। तो इतनी बड़ी सिम ट्रे मैंने कभी नहीं देखी अपने फ़ोन में, अपने परचेस्ड फ़ोन में। तो लेट्स हैव द सिम ट्रे इंसर्टेड इनटू इट। हमने अपनी सिम ट्रे इंसर्ट कर दी है एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ। सिम ट्रे इंसर्ट कर दी है एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ। We just set the account for ourselves, accept. So your assistant is ready. Not necessary, no thanks. And let's start off with our X Club. Skip for now, skip anywhere. I don't prefer having a fingerprint sensor for now. Let's skip it for now. All right, I gotcha. So that's the first screen of our new phone. It's 404, and let's start off immediately with the camera. Oh, yeah, the camera is this amazing. I wasn't expecting it to be काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यार, बिकॉज मैंने सुना है 12 मेगापिक्सल का कैमरा है जो दैट कन्वर्ट्स इमेजेस, बट लुक्स क्वाइट इम्प्रेसिव। लेट्स टेक अ पिक्चर। Allow us to view the app gallery. वाओ यार, डेप्थ ऐसा लग रहा है 3D इमेज आई है। You see the image well? See the image? ऐसा लग रहा है 3D image. 1 minute. Yeah. 1 minute. I'm coming. तो looks like a 3D image and phones. मज़ीद इमेज
Here we have the face unlock, which I don't want to use for now. Then we've got the Google Gallery, and and हाथ थक गया था यार फ़ोन पकड़ते पकड़ते, so I've changed my hand. And here's the Play Store. One of the reasons for not going with the Huawei was the Play Store. Huawei is going to suffer big time. We are very unfortunate that the Huawei is not going to be around. Huawei phone's not going to be around because of this tussle between America and China. So that was the App Store, and I've got a few games over here. Jumping Joy, I guess. I don't want to play it for now. Six GBs of RAM. That's a lot, yaar. The calendar, your settings, and all the usual things. I've got a few messages as well since I've connected my SIM to it. And oh, there's one more game. I guess it's installing things on into the phone by itself. I don't know how did that happen. So I don't play games. I don't need that. YouTube's my favorite. I need a lot of Gmail, YouTube, Google Maps, Play Stores, the camera. These are the things that I use, and that's the reason why I went after this phone. This is a phone that is suitable to my requirements in specific. So as I said कि ये लेने के पीछे जो है वो, now I'm currently filming with a Samsung Galaxy A8 2016, और जैसा मैंने आपको बोला, this is a customized phone for my which was my personal preference and suits my requirement. I use the phone a lot for talking, for listening to music. I watch a lot of YouTube, और उसके अलावा just a little bit of Facebook, and just to be updated. और उसके अलावा I use the camera for images, क्योंकि मेरा थोड़ा I need to take images from time to time of cars that I purchase and sell. तो उसके लिए मुझे कैमरा बहुत अच्छा चाहिए था. तो माशाल्लाह इसका कैमरा, the first impression was better than what I was expecting of it, because people have told me कि 12 मेगापिक्सल होगा, और वो जो है वो कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस के थ्रू उसको 48 करता है, बट द रिजल्ट्स वो इम्प्रेसिव. तो मेरा काम कैमरा से बहुत ज़रूरी था. सेकेंडली क्योंकि गाड़ियों की इमेजेस लेनी होती हैं तो बहुत ज़्यादा होती हैं. आई नेवर रियलाइज्ड दिस थिंग ओवर द from time to time. I needed to have more gigabytes in my phone, but I didn't realize that part. तो किसी टाइम पे S2 होता था मेरे पास, और वो मेरा ख्याल है 32 GB में आता था. तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी ना. लेकिन पिछला मेरा जो Infinix Hot 8 था, that was 64 GB. बहुत अच्छा फ़ोन था. Samsung J6 Plus जो मैंने उससे पहले भी लिया था, वो भी बॉक्स पैक था. मैं उससे थोड़ा सा हीटिंग इश्यूज थे, और लैग बहुत ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा. दैट वाज सरप्राइजिंग टू मी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी गाड़ी में ही नीचे पड़ा हुआ था. गाड़ी की डिग्गी में किसी ने कोई उठा के ले गया मेरे अपने अपार्टमेंट से. So that was one unfortunate event that happened this year. And then the second one was this one, the phone getting snatched off my hand. So that was pretty sad. तो अभी
मेन मैं आपसे ये क्यों शेयर करना चाह रहा हूँ, लोगों के रिव्यूज़ बड़े स्पेसिफिक होते हैं। मैं थोड़ा जो हूँ इधर उधर की भी बातें उसमें मिला देता हूँ ताकि जो बंदे का मकसद है फ़ोन लेने का वो तो पूरा हो। मैं अभी ये जिस मोबाइल से मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, ये जो है वो ये सैमसंग का गैलेक्सी A8 है, 2016 का मॉडल। अभी ये मेरे दोस्त ने मुझे ख़रीद के दिया, मैं उसके साथ गया। ही इज़ एन एक्सपीरियंस गाय इन परचेजिंग फ़ोन्स, लेकिन किसी ने जो है वो हमें बना दिया ना इधर। ही इज़ गिवन अस अ फ़ोन जो 70% बैटरी पे आता है और इट शट्स डाउन ऑटोमेटिकली। फ़ोन हीट बहुत हो जाता है, मेरे हाथ में भी अभी हीट है, हालांकि इधर एयर कंडीशनिंग जो है चल रही है। तो ये फिल्म कर रहा है अभी भी वाइल शूटिंग। एक बार मुझे फ़ोन चार्ज पे लगाना पड़ा। सो दैट्स द प्रॉब्लम व्हेन यू गो फॉर अ यूज्ड फ़ोन। दोस्त ने बड़ा मशवरा दिया कि नोट 8 के लिए चले जाओ, नोट 8 के लिए चले जाओ। दैट वाज गोना कॉस्ट 40,000 एंड येट अगेन वो एक किट होती। मुझे नहीं पता, मेरा काम ऐसा है कि मैंने इतनी स्ट्रगल करके 1 से 2 हफ्ते के बाद ये फ़ोन ख़रीदा है। मेन इशू उसमें पैसे भी देना इतना आसान नहीं होता। अभी ये मेरा जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए इस साल फ़ोन में जा चुके हैं। J6 Plus was 32, then the Infinix Hot 8 was 18. Then after that I bought this thing. I bought this Samsung A8 that I'm using right now. This was another 8, so that's 58. उसके बाद फिर मैंने एक जो है Nokia C1 लिया, जो इससे पहले लिया था, इस Note 7 से पहले। वो मुझे 7-8 हज़ार का पड़ा। मैं उसे 2 दिन भी नहीं यूज़ कर सका क्योंकि इन्फिनिक्स से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। और फिर मैंने जो है वो आज जाके हिम्मत करके ये नोट 7 लेकर आया ना। तो मैंने 1-2 फ़ोन वर्ल्ड की रिव्यूज़ भी देखी थी। कंप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ, देखें आपका वो है कि आप जो लोगों के साथ शेयर करें, लेकिन थोड़ा सा यार मिसगाइड नहीं करें, क्योंकि लोग पैसे अपने लगाएंगे और बड़ा जो है ना एक दिल के साथ बंदा अपना फ़ोन लेता है, उसके साथ एक कनेक्शन होता है। मुझे नहीं, दूसरों का नहीं पता, मुझे मेरी चीज़ों के साथ बड़ा अहम कनेक्शन होता है, चाहे वो एक 20 रुपये वाला पेन भी हो। तो वो कल रात में मैं वीडियो देख रहा था जिसमें इन्फिनिक्स नोट 7 नंबर 3 पे दिखाया है, वीवो नंबर 2 पे दिखाया और टेक्नो कैमॉन नंबर 1 पे दिखाया है। टेक्नो कैमॉन में वो फ्रंट के कैमरा के अलावा 30 मेगापिक्सल के कैमरा के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इन्फिनिक्स के साथ compete करे अदर देन द डिस्प्ले। लेकिन वो भी LCD डिस्प्ले थी, LED डिस्प्ले नहीं थी। तो आप कैसे इन्फिनिक्स नोट 7 को नंबर 3 पे डालते हैं, आप उस वीडियो में देख भी सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि नोट 7 को आप कैसे नंबर 3 पे डाल सकते हैं। इन्फिनिक्स जो है मार्केट को काफ़ी टाइम से पीटता हुआ आ रहा है। इन्फिनिक्स सबसे पहले दराज पे हिट हुआ था जब मुझे एक अजीब सा ही नाम लगता था, कोई लोकल फ़ोन लगता था, लेकिन इन्फिनिक्स उन दिनों बड़ा हॉट होता था। मेरा ख्याल है उन दिनों वो नोट 10 के नाम से आता था या कोई 9 और 10 के नाम से इनकी सीरीज़ थी जो बहुत मशहूर हुई थी, बहुत बिकती थी और ज़्यादातर ये लोग ऑनलाइन ही उसको सेल करते हैं। सो दीज आर a few reasons why you should go for an Infinix Note 7. अदर देन दैट भी मैं इन्फिनिक्स के फ़ोन से काफ़ी खुश हूँ। रात में मैंने इसका आखिरी कंपैरिजन किया है Huawei Y7P का। मैं काफ़ी हद तक Huawei Y7P की तरफ मुड़ चुका था। A20s का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सैमसंग गैलेक्सी A20s का कोई कंपैरिजन नहीं है इसके साथ, पैसे बराबर हैं, लेकिन वो फिर मुझे वही उम्मीद थी कि वही सैमसंग J6 वाली प्लस वाली प्रॉब्लम जो है दोबारा मुझे फेस होती। तो सैमसंग का अपना नाम है। हाँ, इन्फिनिक्स में मैं एक चीज़ जो है वो सैमसंग की ज़रूर मिस करूँगा, जो सैमसंग की लेजेंडरी है, दैट्स ग्रेट, एंड दैट्स सैमसंग्स यूज़र इंटरफेस। They've got an amazing user interface, no one can deny that. Whereas Infinix has just got is improving for sure. So those were my views about the Infinix Note 7 and the Infinix brand as well. It's quite a good brand, prices are reasonable. Getting a Chinese phone towards 30,000, that would be around $220-240. It's expensive, it's not cheap.
और मुझे नहीं समझ में आता, जब आप एक चाइनीज़ फ़ोन ही ले रहे हैं तो ये ओप्पो कैसे इतना हिट हो गया है कि 60-70 थाउजेंड पे जा रहा है। हुआवी के फ़ोन बड़े इंप्रेसिव हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट गूगल प्ले इशू इज़ गोना कॉस्ट हुआवी अ लॉट. So I hope you all have enjoyed watching my video, and hopefully many more to come. चैनल को रिफ़्रेश किया हुआ है, वीडियोस थोड़ी सेट की हैं, काफ़ी सारी वीडियोस डिलीट की हैं जो पुरानी थी, जो अननेसेसरी थी, जो फोकस नहीं थी. तो आई होप यू ऑल विल एंजॉय माय चैनल, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यू कार वीडियोस ऑन माय चैनल टू वॉच, एंड द रीबिल्डिंग प्रोसेस एक्सेट्रा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.